channel aspirant electric and 100 questions about electrical measuring instruments, basically MCQs has are and their answers. Next, पहले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं. A thermocouple has a low time constant when it is bare, has a low time constant if it is provided with sheath, has the same time constant whether it is bare or it is provided with sheath, and none of these. सो पहले आते हैं ये थर्मोकपल है क्या. ये थर्मोकपल इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस कॉन्टेनिंग जंक्शंस ऑफ टू डिसिमिलर मेटल जॉइंट्स एंड इट इज़ यूज्ड एज टेम्परेचर सेंसर्स एंड थर्मोकपल वर्क्स ऑन द सीबेक इफेक्ट. सीबेक इफेक्ट तो आप लोगों को पता ही है, फिर भी मैं बोल देता हूँ. टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन टू डिसिमिलर इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स प्रोड्यूसेस ए वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन देम, यही बोलता है सीबेक इफेक्ट. So back to the question. Here the answer is the has a low time constant when it is bare. So option number A is correct. Second, law of intermediate temperature in thermocouples allows them to. Here the options: use meters for measurement without disturbing the circuit conditions, use extension wires of materials other than one used for making thermocouples, and option D, both B and C above. So here B and C above both are the correct answer. Next, piezoelectric accelerometers should not be used for high frequency above 100 Hz, should be used for low frequencies, should be used a monitoring source of low input impedance, have a low natural frequency. Here the answer is B, should be used for lower frequency. Next, dummy strain gauges are used for compensation of temperature changes, increasing the sensitivity of bridge in which they are included, compensating for different expansion, calibration of strain gauge. Here, option number A is correct, compensation of temperature changes. हालांकि इसका और भी कुछ यूजफुलनेस है, वो है इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट एंड द लेडर रेजिस्टेंस वगैरह कुछ है. नेक्स्ट, द व्हिस्टन ब्रिज मेथड ऑफ रेजिस्टेंस मेजरमेंट इज आइडियली सुटेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यूज इन द रेंज ऑफ 0.001 ओहम टू 1 ओहम, 0.1 ओहम टू 100 ओहम, 100 ओहम टू 10 किलो ओहम एंड 100 किलो ओहम टू 10 मेगा ओहम. So there option number B, 0.1 ohm to 100 ohm. Next, two strain gauges are used to measure strain in a cantilever. One gauge is mounted on top of the cantilever and the other is placed at the bottom. The two strain gauges form two arms of the voltage sensitive Wheatstone bridge. This bridge configuration is called B, half bridge. पहले क्वेश्चन को पहले समझो क्या कहना चाहता है. इतना बड़ा क्वेश्चन है, मतलब इसका आंसर बहुत डिफिकल्ट होगा ऐसा कुछ बात नहीं है, बेसिक्स जानना पड़ेगा. हियर द आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, ए हाफ ब्रिज. द इंडक्टेंस ऑफ ए हाई क्यू इंडिकेटर कैन बी मेजर्ड यूजिंग हे ब्रिज, ए नल टाइप इंस्ट्रूमेंट एज कंपेयर टू डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट हैज a higher accuracy, a lower sensitivity, a faster response, and all of the above. Here the option is A. A is the correct option. Clear? Next, a Wheatstone's bridge cannot be used for precision measurements because errors are introduced into on account of resistance of kinetic leads, thermoelectric EMFs, and the contact resistances, and all of this. तो यहाँ पर A, B, C तीनों ही करेक्ट है. सो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर. इन ए केल्विन ब्रिज, two sets of readings are taken when measuring a low resistance, one with the current in one direction and other with direction of current reversed. This is done to eliminate the effect of options. देख लेते हैं. Contact resistance, resistance of leads, changes in battery voltage, thermoelectric EMFs. Here the answer is option D, thermoelectric EMFs.
When measuring insulation resistance of cables using DC source, the galvanometer used should be initial short circuited because options are cables have low value of initial resistance, cables have a high value of capacitance which draws high value of charging current, cables have low value of capacitance which draws a high value of charging current, and none of these. Here the correct answer is option B. Cables have a high value of capacitance which draws a high value of charging current. Next, which of the photoelectric transducers is used for production of इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी? ये तो पता है सबको, इसका आंसर फोटो एमिसिव सेल नहीं होगा, फोटो डायोड भी नहीं होता, फोटो ट्रांजिस्टर भी नहीं होता, इसका आंसर है फोटो वोल्टेइक सेल। क्लियर। नेक्स्ट, व्हेन अ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज ऑफ एन अननोन सोर्स द पावर कंज्यूम इन द सर्किट ऑफ अननोन सोर्स अंडर नल कंडीशंस इज? ऑप्शन ए वेरी हाई, B high, C small, and D ideally 0. So here what is the answer? That is the under null condition is ideally 0 होगा, तो D आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर है। Standardization of potentiometers is done in order that they become, options are accurate, precise, accurate and direct reading, accurate and precise। ऑप्शन नंबर सी एक्यूरेट एंड डायरेक्ट रीडिंग यही होगा। नेक्स्ट, डिफ्लेक्शन मेथड्स ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट्स आर मोस्ट वाइडली यूज्ड इन एज दीज आर मोस्ट सिंपल, मोस्ट एक्यूरेट, लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग, मोस्ट सिंपल एंड लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग। क्या होगा? ये जो डिफ्लेक्शन मेथड होता है ना डायरेक्ट मेजरमेंट का, इसमें क्या होता है? मोस्ट सिंपल एंड लीस्ट टाइमिंग कंज्यूमिंग, इसीलिए तो हम लोग ये वाला मेथड हम यूज करते हैं। कंपैरिजन मेथड्स आर यूज्ड, ऑप्शन सर बिकॉज दीज आर मोस्ट सिंपल, बिकॉज दीज आर इनएक्सपेंसिव, बिकॉज दीज टेक लीस्ट टाइम इन मेजरमेंट, व्हेन ए हाई एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड। कंपैरिजन मेथड कहाँ पे यूज होता है? डी व्हेन ए हाई एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड। तो कंपैरिजन मेजरमेंट बेसिकली क्या होता है, जो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले जाता है और जो एक्चुअल वैल्यू होता है ना, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू बाय स्टैंडर्ड वैल्यू, यही होता है कंपैरिजन मेथड में। नेक्स्ट, द मेन एडवांटेज ऑफ द नॉन बैलेंस टेक्निक ऑफ मेजरमेंट इज दैट it does not load the medium, it gives a center zero value at its input, it gives the quick measurement, it is not affected by temperature variation। देखो यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर है, इट डज नॉट लोड द मीडियम। तो जो नॉन बैलेंस टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या होता है? पोटेंशियोमीटर है, ब्रिजेस है, एलिविडिटी है, एंड क्या है? इट यूजेस ए null detector which indicating the null condition when the measured quantity and the opposite quantity is the same। यही रहता है नल बैलेंस टेक्निक का मेनली फॉर्मूला। एंड ये जो नल टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, ये बेसिकली क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट इन विच जीरो और नल इंडिकेशन डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी, सच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द नल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट, consider the following statement in connection with the deflection and the null type inspection। null type instrument is more accurate than deflection type one, ये तो सही है। null type instrument can be highly sensitive as compared with deflection type instrument, ये भी सही है। under dynamic conditions null type instrument is not preferred to deflection type instrument, ये भी सही है। सो 4 नंबर में क्या है? रिस्पॉन्स इज फास्टर इन नल टाइप इंस्ट्रूमेंट एज कम्पेयर टू द डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन ए 1 2 3 ओनली। क्लियर। नेक्स्ट, सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होता है। द रीजन बिटवीन द लिमिट्स विथ इन which a quantity is measured, received or transmitted, expressed by stating the power and upper limits called a range, span, range limit and the none of these। तो यहाँ पर क्या होता है? इसको रेंज कहा जाता है, रेंज। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। द स्पैन ऑफ जीरो सेंटर्ड वोल्ट मीटर हैविंग ए स्केल फ्रॉम -10 वोल्ट टू 10 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट इज। देखो यहाँ पर जो होता है ना,
तो फाइनल क्या है, +10 वोल्ट माइनस ऑफ -10 वोल्ट, तो फाइनल माइनस इनिशियल कंडीशन, ठीक है, यही होता है। सो +10 तो यहाँ पर है, माइनस और -10 मिले तो +10 हो गया, तो दोनों मिलकर 20 वोल्ट होता है, तो यहाँ पर डी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ 2 मीटर्स एक्स एंड वाई रिक्वायर्ड 40 मिली एम्पियर एंड 50 मिली एम्पियर रिस्पेक्टिवली टू गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन, देन एक्स इज मोर सेंसिटिव। यहाँ पर एक्स इज मोर सेंसिटिव यही होता है, बाकी ऑप्शन भी देख लो, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट चेंज इन ए मेजर्ड वेरिएबल टू व्हिच एन इंस्ट्रूमेंट विल रिस्पॉन्ड इज एक्यूरेसी, रिसोल्यूशन, प्रिसिशन एंड सेंसिटिविटी। क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ का आंसर है रिसोल्यूशन, इसको रिसोल्यूशन कहा जाता है। तो एक्यूरेसी और प्रिसिशन के बारे में भी बता देता हूँ। एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन आर द टू मेजर्स ऑफ द ऑब्जर्वेशनल एरर, एंड एक्यूरेसी इज हाउ क्लोज ए गिवन सेट ऑफ मेजर्ड आर टू देयर ट्रू वैल्यू, ठीक है, हाउ क्लोज, दैट्स कॉल्ड द एक्यूरेसी। एंड प्रिसिशन क्या होता है, प्रिसिशन हाउ क्लोज द मेजरमेंट आर टू ईच अदर, यही होता है प्रिसिशन, ठीक है। प्रिसिशन इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ रैंडम एरर्स एंड ए मेजर ऑफ द स्टैटिस्टिकल अवेलेबिलिटी, इसे कहते हैं प्रिसिशन। तो समझ में आया, यहाँ का जो आंसर है ऑप्शन बी रिसोल्यूशन करेक्ट है, और एक्यूरेसी प्रिसिशन के बारे में भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट, रिसोल्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज क्या होता है, ऑप्शन आर द मिनिमम क्वांटिटी इट कैन मेजर, द मैक्सिमम क्वांटिटी इट कैन मेजर, द मैक्सिमम नॉन लिनियरिटी, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश पोलैरिटी। सो द हियर द ऑप्शन ए इज करेक्ट, द मिनिमम क्वांटिटी इट कैन मेजर। नेक्स्ट, हिस्टेरेसिस इन एन इंस्ट्रूमेंट मीन्स, हिस्टेरेसिस के मतलब क्या है, ये वो जो मोटर वाला जो हिस्टेरेसिस लॉस है वो नहीं है, ठीक है, ये मेजरमेंट पोर्शन में भी एक हिस्टेरेसिस है, ये समझना पड़ेगा फर्स्ट। द चेंज इन द सेम रीडिंग व्हेन इनपुट इज फर्स्ट इंक्रीज्ड एंड देन रिड्यूस्ड, द रिलायबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, द रिपीटेबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, द इनएक्यूरेसी ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। तो बी सी नहीं होगा, टी भी नहीं होगा, सो हियर द आंसर इज ए, ठीक है। एग्जाम में भी यही करना पड़ता है, जब उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है, कि आधा अधूरा पता होता है, तो क्या होता है ऑप्शन को माइनस कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी सी तो नहीं होता और डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, और यही करेक्ट है यहाँ पर, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द स्टैटिक एरर बैंड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इम्प्लाइज द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, irrepeatability of the instrument, error caused when the pen is stopped at some deflection, error introduced in low varying inputs। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है, error caused when the pen is stopped at some deflection, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टैटिक एरर बैंड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट डज नॉट इंक्लूड नॉन-लिनियरिटी, इलेक्ट्रिकल ड्रिफ्ट, हिस्टेरेसिस इन द इंस्ट्रूमेंट एंड नन ऑफ द अबव। हियर बी इज द करेक्ट आंसर होता है। देखो स्टैटिक एरर एक्चुअली है क्या, स्टैटिक एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द बेस्ट मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, यही होता है स्टैटिक एरर, ठीक है। नेक्स्ट, द फैक्ट एज टू हाउ क्लोजली द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अलाउज द मेजर्ड वेरिएबल्स इज कॉल्ड द, तो एक्यूरेसी, फाइडिलिटी, प्रिसिशन, सेंसिटिविटी, ठीक है। तो हेयर द ऑप्शंस आर दैट इज द फाइडिलिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, फाइडिलिटी। तो एक्चुअली सेंसिटिविटी क्या होता है, सेंसिटिविटी इज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू चेंज इन द इनपुट, क्लियर है। प्रिसिशन और एक्यूरेसी के बारे में मैंने पहले बता चुका हूँ, और सेंसिटिविटी के बारे में भी मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट, ए हायर स्केल एमीटर इज यूज टू मेजर टू लो करंट, द मेजरमेंट वुड हैव लो, ऑप्शन ए प्रिसिशन, बी एक्यूरेसी, रिसोल्यूशन एंड डी ऑल ऑफ दिज। क्या होता है यहाँ पर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिज, क्योंकि प्रिसिशन, एक्यूरेसी, रिसोल्यूशन तीनों ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, थर्मल जीरो शिफ्ट इन एन इंस्ट्रूमेंट refers to maximum variation in pen zero due to temperature variation,
inaccuracy in measurement due to temperature variation, shift in zero adjustment due to expansion of springs due to temperature variation, and none of the above. तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मैक्सिमम वेरिएशन इन पिन जीरो ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन. नेक्स्ट, इन व्हिच पार्ट ऑफ द स्केल डज द पॉइंटर इंडिकेट मोस्ट एक्यूरेटली. तो क्या होता है यहाँ पर, ऑप्शन सी इन अबाउट द मिडिल ऑफ द स्केल, यही होता है ना, पॉइंटर इंडिकेट द मोस्ट एक्यूरेटली. तो जो मिडिल ऑफ द स्केल है ना वहाँ पर करेक्ट होता है. तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर. व्हेन रीडिंग इज टेकन एट हाफ स्केल इन द इंस्ट्रूमेंट द एरर इज एग्जैक्टली इक्वल टू हाफ ऑफ फुल स्केल एरर, इक्वल टू फुल स्केल एरर, लेस देन फुल स्केल एरर एंड द मोर देन फुल स्केल एरर. सो ऑप्शन सी लेस देन फुल स्केल एरर यही होता है. ठीक है, एरर. नेक्स्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. टू मेजर रेडियो फ्रीक्वेंसी द सुटेबल फ्रीक्वेंसी मीटर इज, दैट इज द वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर, रीड वाइब्रेटेड फ्रीक्वेंसी मीटर, हेटेरोडॉक्सी फ्रीक्वेंसी मीटर, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मीटर. Here the answer is the option C, heterodoxy frequency meter. Next, the principle on which vector voltmeter is based. देखते हैं ऑप्शंस. दैट इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएशन, ये तो नहीं होगा. दैट इट मेजर्स द रिस्पॉन्स ऑफ द लीनियर रैम्प वोल्टेज, ये भी नहीं होगा. सेम एज द डिजिटल मीटर, ये भी नहीं होगा. दैट इट मेजर्स द एम्पलीट्यूड ऑफ ए सिंगल एट द लो पॉइंट्स एंड एट द सेम टाइम मेजर्स द देयर फेज डिफरेंस, यही वाला आंसर है ऑप्शन डी. ठीक है. नेक्स्ट, और एक बात, ये जो वेक्टर वोल्ट मीटर है ना, ये एक्चुअली क्या मेजर करता है, एम्पलीफायर गेन एंड फेज शिफ्ट, टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर्स एंड कॉम्प्लेक्स इंसर्शन लॉस. ठीक है. नेक्स्ट, बेसिकली ये पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस फॉर कंपेयरिंग टू वोल्टेजेस, यही होता है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. अदर ऑप्शन देख लो, मेजरिंग करंट क्या करता है, एमीटर, कंपेयरिंग टू करंट, ये भी नहीं होगा. मेजरिंग है वोल्टेज, तो वो क्या होता है, वो तो वोल्ट मीटर होता है, वो भी नहीं होगा. कंपेयरिंग टू वोल्टेजेस, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. और ये जो पोटेंशियोमीटर है ना, ये एक 3 टर्मिनल डिवाइस है. ठीक है, ये बात भी ख्याल रखो. नेक्स्ट, in order to achieve high accuracy the slide wire of a potentiometer should be as long as possible, as short as possible, neither too small, not too large, and the very thick. Here as long as possible. ठीक है, क्योंकि वो जो वायर लिया जाता है ना, वो बहुत ही लेंथी होता है. ठीक है, as long as possible लो इसको. नेक्स्ट, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, as long as possible. To measure an AC voltage by using an AC potentiometer, it is desirable that the supply for the potentiometer is taken from a source which is not the same as the unknown voltage from a battery from the same source as the unknown voltage and any of the above. तो B तो नहीं होगा. तो A में देखो, from a source which is not the same as the unknown voltage, ये नहीं होगा. और सी में देखो, फ्रॉम द सेम सोर्स एज द अननोन वोल्टेज, सी होगा इसका आंसर. ठीक है. नेक्स्ट, द स्टेटर ऑफ फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर फॉर यूज इन कंजंक्शन विथ एसी पोटेंशियोमीटर यूजुअली हैज ए सिंगल फेज वाइंडिंग, 2 फेज वाइंडिंग, 3 फेज वाइंडिंग, एनी ऑफ द अबव. देखो, पहले तो एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर के बारे में जो कुछ भी बता जा रहा है, तो सिंगल फेज वाइंडिंग नहीं होगा, 3 फेज भी नहीं होगा. ठीक है, 2 फेज वाइंडिंग होगा. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2 फेज वाइंडिंग. ठीक है. नेक्स्ट आंसर, इन एन एसी कोऑर्डिनेट पोटेंशियोमीटर द करंट्स इन द फेज एंड क्वाड्रेचर पोटेंशियोमीटर आर एडजस्टेड टू बी out of phase by 90 degree, out of phase by 60 degree, out of phase by 30 degree, and out of phase by 0 degree. So the here the answer is the out of phase by 90 degree. ठीक है, 90 डिग्री में लैग करता है, यहाँ पर लीड करता है. ये यूनिवर्सल RLC ब्रिज यूजेस मैक्सवेल ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस
De Sanctis bridge for measurement of for capacitance, Maxwell bridge, Wien bridge for measurement of inductance, and modified De Sanctis bridge for measurement of capacitance. Here the answer is option B, Maxwell Wien bridge for measurement of the inductance and modified De Sanctis bridge for the measurement of the capacitance. ठीक है. Next, which of the following software is used for the program the embedded device? PSCAD, ETAP, Multism and KLU Fusion. ठीक है. Here the answer is the KLU Fusion. तो एम्बेडेड जो सॉफ्टवेयर यूज होता है ना, उसके जो डेवलपमेंट टूल्स है जैसे लाइक PyCharm, वेबस्टॉर्म, Qt क्रिएटर, MPLabX, विजुअल स्टूडियो, एक्लिप्स, नेटबीन्स, यही होता है. ठीक है. नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर एंड फ्रीक्वेंसी वेरिएशन इन वाट मीटर कैन बी रिड्यूस्ड इफ प्रेशर कॉयल इंडक्शन इज जीरो, ये कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल ऑफ टू प्रेशर कॉयल, ये तो नहीं होगा. डैम्पिंग इज नॉट प्रोवाइडेड, वोल्टेज कॉयल रेजिस्टेंस इज जीरो, वोल्टेज कॉयल रेजिस्टेंस इज जीरो, ये भी नहीं होगा. एंड द डैम्पिंग इज नॉट प्रोवाइडेड, ये नहीं होगा. तो प्रेशर कॉयल इंडक्शन इज जीरो, यही होगा आंसर. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. तो जो आता है ना जो वाट मीटर, तो वाट मीटर में क्या होता है, दो कॉयल रहता है, एट अ करंट कॉयल एंड सेकेंड वन दैट इज द प्रेशर कॉयल. ठीक है. करंट कॉयल कनेक्ट इन सीरीज विद द लोड एंड प्रेशर कॉयल कनेक्ट इन पैरेलल विद द लोड. क्लियर. एंड आइडियली द current in pressure coil is in phase, but practically the current lags the applied voltage. This is due to presence of inductance in pressure coil. Next, rectifier moving coil instrument respond to, that is the two average value for all waveforms, peak value irrespective of the nature of the waveform, RMS value for all waveforms, RMS value for symmetrical square waveforms. Here the option 2 is correct, average value for all waveforms. Next, the type of damping used for moving iron instrument is the air friction damping. ये तो पता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है. तो यहाँ पर एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. ये मीटर रीड्स 125 वोल्ट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज 125.5 वोल्ट. फाइंड द स्टैटिक एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. देखो पहले तो ये समझो स्टैटिक एरर क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू. सो 125.5 वोल्ट minus 125 volt, that is the 0.5 volt answer. So here option number 3 is the correct answer. When the pointer of an indicating instrument is in motion, then the deflecting torque opposed by damping torque, controlling torque, both damping and controlling torque, and the rotating torque, that is the controlling torque. The deflecting torque को कौन अपोज करता है, जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है ना वही तो अपोज करता है. ये जो डैम्पिंग टॉर्क है ना कहाँ पे यूज होता है, यूज टू द रिड्यूस ऑसिलेशन एंड व्हीटस्टोन ब्रिज मेजर 1 ohm टू द फ्यू मेगा ohms. ऑपरेटिंग टॉर्क्स इन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स आर, क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग एंड कंट्रोल, डिफ्लेक्टिंग एंड डैम्पिंग, एंड द वाइब्रेशन एंड बैलेंसिंग, डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोल एंड डैम्पिंग. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोल एंड डैम्पिंग. सो हियर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट इन पावर सिस्टम मेजरमेंट आर इंडक्शन, मूविंग कॉयल और आयरन, रेक्टिफायर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक. देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक तो क्या होता है, वाट मीटर निकल ए, इंडक्शन, ऑप्शन ए इंडक्शन इज द करेक्ट आंसर. डैम्पिंग ऑफ द बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इज मेड स्मॉल टू गेट फास्ट डिफ्लेशन लार्ज, मेक द सिस्टम ऑसिलेटरी, मेक द सिस्टम क्रिटिकली डैम्प, गेट मिनिमम ओवरशूट. तो गेट फास्ट डिफ्लेक्शन लार्ज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन का. नेक्स्ट, इफ एन इंस्ट्रूमेंट हैज क्रैम्प्ड स्केल फॉर लार्जर वैल्यूज देन इट फॉलोज स्क्वायर लॉ, लॉगारिथमिक लॉ, यूनिफॉर्म लॉ, none of the above. Their answer is, that is the logarithmic law. Volt box is a component to extend voltage range, measure voltage, compare voltage in a box, and the none of the above. That is the extend voltage range. Okay, option number A is the correct answer. Volt box is a component to extend voltage range. Okay. Next, EMF of a Weston cell is accurately measured by electrostatic voltmeter, hot wire voltmeter, isothermal voltmeter,
electrodynamic voltmeter, that is the electrostatic voltmeter. Next, the gravity controlled measurement has crowded scale because current is proportional to, that is the balancing weight, deflection angle, sine of the deflection angle. So C, that is the sine of the deflection angle. ठीक है, फिर एक बार मैं बोल देता हूँ, द ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट हैज क्राउडेड स्केल बिकॉज करंट इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ डिफ्लेक्शन लॉ. ये तो पता ही है ना. नेक्स्ट, ये सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर प्रोड्यूसेस लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर, किसके लिए होता है? ठीक है, स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, लार्ज वैल्यू ऑफ करंट, लार्ज वैल्यू ऑफ पावर, लार्ज वैल्यू ऑफ वोल्टेज. दैट इज द स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट. क्योंकि ये जो गैल्वेनोमीटर का जो मेन वर्क है वो क्या होता है, जो करंट को डिटेक्ट करना है, तो डिफ्लेक्शन तो देगा ही ना. तो स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट. नेक्स्ट, डेट टाइम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट टू बिगिन टू रिस्पॉन्ड टू ए चेंज इन द मेजर, द टाइम required by an instrument for initial warming up, the largest change of input quantity for which there is no output of the instrument. So कहता है डेट टाइम. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, द टाइम रिक्वायर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इनिशियल वार्मिंग अप. नेक्स्ट वन, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. हाँ, नेक्स्ट, टॉर्क वेट रेशियो विल बी लिस्ट इन इंस्ट्रूमेंट. कहाँ पे होता है? डायनामोमीटर, moving iron, moving coil and all of the above. That is the option A, dynamometer instrument. Next, so option number A is the correct answer. Vibrating reeds are used in which of the following instruments? Vibrating reeds are used in the पावर फैक्टर मीटर में तो नहीं होता, वाट मीटर में भी नहीं होता, सिंक्रोनोस्कोप में भी नहीं होता, फ्रीक्वेंसी फैक्टर मीटर. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, scale of an instrument will be uniform if deflecting torque varies directly as the deflection angle, control torque varies directly as the deflection angle, C, both A and B, and D, damping torque varies directly as the deflection angle. So the answer is, that is the deflecting torque varies directly as the deflection angle. A और B दोनों में यूज होता है. तो the answer is option C, both A and B. Next, in an instrument hysteresis mean, एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है तो फिर भी बोल देता हूँ. द इनएक्यूरेसी ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर, द रिलेबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, द रिपीटेबिलिटी, द चेंज इन द सेम रीडिंग व्हेन इनपुट इज द फास्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू कॉमनली फॉर द मेजरमेंट ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस, वोल्टेज एंड पावर. दैट इज द पावर. एक्चुअली इलेक्ट्रोडायनामिक क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट वाट मीटर होता है. तो वाट मीटर क्या मेजर करता है? पावर मेजर करता है. नेक्स्ट, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. द बैंडविड्थ ऑफ एन एम्पलीफायर इज अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू इट्स अपर 3 dB frequency, product of the 3 dB frequencies, inversely proportional to its the upper 3 dB frequency, and none of the above. So the here the option A is the correct answer, proportional to its upper 3 dB frequency. Next, moving parts of instruments are supported in bearings. A, jeweled, B, ball, C, roller, D, bush. So roller, ball and bush तो ये तो नहीं होगा, तो option A, that is the jeweled, is the correct answer. Next, dash type of instrument has identical calibration for AC as well as the DC values. That is the hot wire. So option A, hot wire, is the correct answer in this question. Next, instrument can have the full scale deflection of the 300 degrees. That is the induction type instrument. ठीक है, तो ऑप्शन ए, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट इज द करेक्ट आंसर. हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट read average value, RMS value, peak value, none of the above. That is the RMS value. Option B is the correct answer. Which of the following instrument can be used for measuring 132 kV AC voltage? Electrostatic voltmeter. Clear? Option A is the correct answer. तो B C D भी देख लेना. हॉट वायर वोल्टमीटर, मूविंग कॉयल वोल्टमीटर, मूविंग आयरन वोल्टमीटर. B C D नहीं होगा, C D तो कतई नहीं होगा. तो A is the correct answer, electrostatic voltmeter. Next, in instruments the deflecting torque depend on the frequency. Which type of instrument बताओ? तो इंडक्शन टाइप, ऑप्शन ए.
हॉट वायर, मूविंग कॉयल, मूविंग आयरन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इंडक्शन टाइप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर थर्मोकपल्स। थर्मोकपल्स में क्या यूज किया जाता है? थर्मोकपल्स के बारे में मैं तो पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी देखिए, प्लाटिनम, रोडियम, क्रोमेल, एलुमेल, क्रोमेल, कोपाल एंड एनी ऑफ द अबव। देखो ये तीनों ही मेटल यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एनी ऑफ द अबव होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फॉर मेजरमेंट ऑन हाई वोल्टेज कैपेसिटर्स द सुटेबल ब्रिज इज विन ब्रिज, मॉडिफाइड डी शांटी ब्रिज, सर्चिंग ब्रिज एंड एनी ऑफ द अबव। दैट इज द ऑप्शन सी, सर्चिंग ब्रिज is used. Next, in an Anderson bridge, the unknown inductance is measured in terms of known inductance and resistance, known capacitance and resistance, known resistance and known inductance. So option B is the correct answer, known capacitance and resistance. ठीक है, Wagner earthing device is used to eliminate errors due to the electrostatic coupling, electromagnetic coupling, both A and B, and none of the above. So option A, electrostatic coupling. ठीक है, option A is the correct answer. Next, for measurement of the mutual inductance, we can use Anderson bridge, Maxwell bridge, Heaviside bridge, and any of the above. There is the option C, Heaviside bridge is used. क्योंकि हम जानते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के मेजर करने में हेवीसाइड ब्रिज ही यूज होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस हैविंग हाई वैल्यू वी शुड यूज मैक्सवेल ब्रिज, मैक्सवेल ओवेन ब्रिज, हेज ब्रिज एंड एनी ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन सी, हेज ब्रिज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, if the current in a capacitor leads the voltage by 80 degree, the loss angle of the capacitor will be 10 degree। क्योंकि जो एंगल होता है ना यहाँ पर लॉस एंगल, तो 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, सो द आंसर विल बी द 10 डिग्री। ओके, नेक्स्ट, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इन ए सर्चिंग ब्रिज द पोटेंशियल ऑफ द डिटेक्टर above earth potential is a few volts only, 1 kV, 5 kV and 10 kV. Option A few volts only is the answer. ठीक है, option A is the correct answer in this question. Next, to avoid the effect of stray magnetic field in AC bridges, we can use magnetic screening, Wagner earthing device, wave filters and any of the above. तो मैग्नेटिक स्क्रीनिंग यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वेव फिल्टर्स यूज़ नहीं किया जाता और वगनर अर्थिंग डिवाइस भी नहीं यूज़ किया होता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इज मियरली कॉन्फाइंड विद इन लेबोरेटरीज एज स्टैंडर्डाइजिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एब्सोल्यूट, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड द इंटीग्रेटिंग। दैट इज द ऑप्शन ए, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड। नेक्स्ट, which of the following technique is most widely used in the single phase data acquisition system? Successive approximation, delta sigma approximation, flash approximation, counter type approximation. देखिए ऑप्शंस, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, डेल्टा सिग्मा एंड द फ्लैश एंड काउंटर टाइप अप्रोक्सीमेशन। Successive approximation is the correct answer of this question. Option A is the correct answer. Next, which of the following is the main objective of the process control? तो ये जो प्रोसेस कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स, टू कंट्रोल ऑप्टिकल पैरामीटर्स, टू कंट्रोल फिजिकल पैरामीटर्स, टू कंट्रोल द मैकेनिकल पैरामीटर्स, टू कंट्रोल द फिजिकल पैरामीटर्स। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो फिजिकल पैरामीटर्स होता है वो क्या होता है? टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, फ्लो रेट हो गया, फोर्स हो गया, यही बात है। ठीक है, नेक्स्ट, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
Which of the following is the best example of the single channel data acquisition system? APM, DPM, CPM and the BPM. Here the current answer is the DPM. तो DPM का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल पैनल मीटर. नेक्स्ट वन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. द डिफरेंस बिटवीन द इंडिकेटेड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज ग्रॉस एरर, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, डायनामिक एरर एंड द रिलेटिव एरर. तो ये क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर. क्योंकि एब्सोल्यूट एरर के क्या हम लोग क्या जानते हैं? ये मेजर और इंडिकेटेड वैल्यू माइनस ट्रू और एक्चुअल वैल्यू, यही होता है ना एब्सोल्यूट एरर. इसको दूसरा नाम स्टैटिक एरर भी होता है. ठीक है. सो हियर ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, एब्सोल्यूट एरर. नेक्स्ट, द ब्रेकिंग टॉर्क ऑफ इंडक्शन टाइप सिंगल फेज एनर्जी मीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फ्लक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फ्लक्स. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फ्लक्स. ठीक है, यही होता है. क्योंकि हम लोगों को वो फॉर्मूला याद आता है ना, तो T इक्वल टू K इंटू फाई स्क्वायर बाई आर ई इंटू एन. ठीक है, वही होता है. ठीक है, यहाँ वहाँ पर क्या होता है? फाई क्या था? फ्लक्स था. तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फ्लक्स. तो हियर द आंसर इज द ऑप्शन 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फ्लक्स. नेक्स्ट, motor power is required to operate a moving iron meter than a PMMC meter because of the magnetic circuit's high resistance, reluctance, retentivity, resilence. देखो, रिसैलेंस तो नहीं होगा, रिटेंटिविटी भी नहीं होगा. तो कन्फ्यूजन तो जो रहता है ना रेजिस्टेंस और रिलक्टेंस के बारे में, तो यहाँ पर रिलक्टेंस होगा. ठीक है, क्योंकि लो रिलक्टेंस जो यहाँ पर हाई रिलक्टेंस है, तो हाई रिलक्टेंस के बारे में तो हम लोगों को पता ही है, तो वही होता है. ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ द क्या होता है? रिलक्टेंस. तो ये जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है ना, ठीक है, इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही है. इसका भी कुछ एडवांटेज रहता है. इट इज़ ए यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ AC एंड DC क्वांटिटीज एंड वेरी चीप ड्यू टू द स्पेशल सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है ना. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इसका आंसर ऑप्शन 2 रिलक्टेंस होगा. द कॉमनली यूज डिटेक्टर्स इन AC ब्रिज क्या होता है? हेडफोन्स, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर्स, ट्यून्ड एम्पलीफायर्स, हेडफोन्स ट्यून्ड एम्पलीफायर्स एंड वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर्स. देखो, ये तीनों ही ऑप्शन ठीक है. ऑप्शन नंबर डी, हेडफोन्स, ट्यून्ड एम्पलीफायर्स, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर्स. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, इन MK सिस्टम ऑफ यूनिट्स द डायमेंशन ऑफ EMF इज गिवन बाई क्या होता है? m² T⁻³ I⁻⁻1. Option number B is the correct answer in this question. Next, AC signal with RMS value 2√2 volt is applied to a PMMC instrument, then the reading of the instrument will PMMC मतलब permanent magnet moving coil instrument will be क्या होता है? तो ये तो 0 होगा ना, क्योंकि with high frequency signal the PMMC will reflect the average value which will be the 0. सो द 0 होगा. ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट द हाफ इंटू I² DL/d². ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हाफ इंटू I² DL/d². ठीक है. If an energy meter disk makes 10 revolutions in 100 seconds, when a load of 450 watt is connected to it, the meter constant is. देखो, ये जो क्वेश्चन है ये मैथ का क्वेश्चन है. ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लो. 10 रिवोल्यूशन है और 10 सेकंड है, तो टाइम 100 सेकंड है और रिवोल्यूशन 10 रिवोल्यूशन है, एंड द लोड क्या है? 450 वाट. तो इसका जो सॉल्यूशन हम देखते हैं क्या है? एनर्जी कंज्यूम्ड इन 100 सेकंड्स गिवन लोड 450 वाट. तो एनर्जी कंज्यूम का जो फार्मूला है पावर इंटू आवर बाई 1000. ठीक है, तो 0.0125 इसका आंसर आता है. और मीटर कांस्टेंट इन रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर, इसका फार्मूला क्या है? रिवोल्यूशन बाई मीटर बाई एनर्जी कंज्यूम्ड. सो रिवोल्यूशन क्या था? 10 था, तो 10/0.0125 दैट इज़ द कैलकुलेशन करने के बाद आता है 800. क्लियर हो गया ना सबको? सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. देखो ये क्वेश्चन, द गिवन फिगर shows the wind bridge connection for frequency measurement. C and R the variables and the gang together
फॉर बैलेंस कंडीशन द एक्सप्रेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी एफ इज द 1/2f CR व्हेन 4 कंडीशन दिया रखा है, ठीक है, इसको देखने का है। जो इसका सॉल्यूशन में हम लोग जा रहे हैं। सो फ्रॉम द बैलेंस इक्वेशन वी नो दैट इज द R1 इंटू R प्लस 1/j⍵c दैट इज द R2। नेक्स्ट इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो आता है 3 नंबर लाइन में R1 इंटू -c² ω2 R² प्लस 1 प्लस j⍵CR एंड j R2 c⍵R, ठीक है। तो इसके बाद 2 c⍵R R1 एंड c⍵R K2। सो आफ्टर कैलकुलेशन ओमेगा इक्वल टू 1/RC एंड एफ इक्वल टू 1/2πRC, ठीक है, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू 1/2π ओमेगा, ठीक है, जो ω/2π तो यही होता है ना, उसको ही लगा दिया। नेक्स्ट इन द AC ब्रिज सोन द फिगर Z1 इक्वल टू 450 ओम, Z2 इसका भी वैल्यू दिया है, Z3 इसका भी वैल्यू दिया है। तो वैल्यू ऑफ द Z4 क्या होता है? तो एक्चुअली बेसिकली ये जो मैथ्स है ना, इसको कंपैरिजन मेथड के जो बैलेंस्ड जो मेथड है ना, उसके लिए उसके अंदर में ये आता है। देखो क्या होता है। तो द बैलेंस कंडीशंस कैन बी अप्लाइड एंड द रिजल्टिंग इक्वेशन सॉल्व्ड Z1 इंटू Z3 इक्वल टू Z2 इंटू Z4। सो द वैल्यू पुटेड दैट इज द 450 इंटू 200 प्लस J100 इक्वल टू 300 माइनस J600 एंड R4 प्लस J इंटू 4 9000 प्लस J4500, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करने के बाद आता है X4 दैट इज द 9000 माइनस 300 R4 बाई 650। सो X4 हमारा निकल कर आता है क्या 150 के आसपास। तो Z4 इक्वल टू 150 ओम द आंसर। सो हेयर द आंसर इज क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी is the correct answer. Next, the meter constant of a single phase 240 volt induction watt meter is 400 revolution per kilowatt hour. The speed of the meter disc for a current of 10 amperes of 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग में है, ठीक है, विल भी ध्यान ख्याल रखना। तो 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग कहाँ है, ठीक है। कुछ डाटा है 400 रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर एंड 240 वोल्ट एंड 10 एम्पियर्स। ट्राई करो तो जाता है इसका सॉल्यूशन की तरफ। तो n इक्वल टू k इंटू पावर इंटू टाइम इन 1 आवर दैट इज़ द 400 इंटू 240 इंटू 10 इंटू 0.8 एंड जो यहाँ पर आवर है तो इसीलिए 1/3600। तो पता ही है ना 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड बाई 100 दैट इज़ द 12.8 RPM। सो द ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, 12.8 RPM। नेक्स्ट, DC voltmeter has a sensitivity of 1000 ohm per volt when it measures half full scale in 100 volt range. The current through the voltmeter will be 100 milliampere, 1 milliampere, 0.5 milliampere and 50 milliampere. So क्या होता है यहाँ पर, sensitivity of DC voltmeter 1000 ohm per voltmeter for half scale in 100 volt range, that is the 50 volt current through the voltmeter, 50 by 1000 that is the 50 मिली एम्पियर, ठीक है। ये मिली एम्पियर में क्या है तो इसलिए 50 आया है, तो एम्पियर में तो ये तो कम ही होगा ना। तो मिली एम्पियर क्या है 1 एम्पियर इंटू 10⁻³ ठीक है, वही होता है ना 1 मिली एम्पियर इक्वल टू। सो ऑप्शन नंबर D is the correct answer, 50 milliampere. The coils having self inductance of 10 milliampere and 15 milliampere have an effective inductance of the 40 milliampere when connected in series adding. What will be the equivalent inductance if we connect them in series opposing? 20 milliampere, 10 milliampere, 5 milliampere and the 0. So L equal to L2 plus L1 plus minus 2M. when ordinary connection होता है ना तो प्लस होता है L1 plus L2 plus 2M that is the 10 plus 15 plus 2M that is the 2M equal to what, 15 milli Henry, got it. And when opposing L equal to L1 plus L2 minus 2M that is the 10 milli Henry, ठीक है। सो यहाँ पर जो आता है ना तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर 10 मिली हेनरी। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, ठीक है, बट ये आना चाहिए
अगर इसको नहीं पता तो एग्जाम में नहीं होगा, लेकिन इसका कैलकुलेशन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेशन ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट, इन द ब्रिज गिवन इन द फिगर द रीडिंग ऑफ द हाई इम्पीडेंस वोल्ट मीटर 20 10 एंड 10 20 दैट इज द, तो इसका सॉल्यूशन की तरह हम लोग जाते हैं। क्या होता है देखिए, करंट इन आइदर ब्रांच इज द I इक्वल टू 10/30 दैट इज द 1/3 एम्पियर एंड द V ए बी में क्या होता है -20 इंटू 1/3 प्लस 10 इंटू 1/3 दैट इज द 10/3 इक्वल टू 3.33 वोल्ट इज द आंसर, दैट इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट का बात है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह हम लोग वीडियो ले आएंगे और हर वीडियो 100 क्वेश्चन का होगा एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हर टॉपिक के ऊपर बनेगा, ठीक है। और जेई, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, पीएससी जेई सबके लिए है, और अदर जो स्टेट लेवल का भी जो कुछ भी जेई होता है ना, जो कोई भी स्टेट का जो कोई भी जेई होता है उसके लिए ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।